السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں محلے میں ہونے والے وہی روایتی جھگڑوں سے۔ جی السلام علیکم۔ روایتی نہیں کہیے، تھوڑا سا اپنے الفاظ کو بدلیے۔ آپ وہیں بیٹھ کے بھی بات کر سکتے۔ یہ روایتی بات نہیں ہے، یہ آج جو بات ہونی والی ہے نا، ہر دوسرے محلے کی یہ کہانی ہے۔ ارے بھائی، اگر اسی طرح یہ لوگ دھم مچاتے رہیں گے گلیوں اور سڑکوں کے اوپر، تو شریف آدمی جو شرفاء اس بستی میں یا اس شہر میں یا اس ملک میں بس رہے ہیں، ان کا تو جینا دوبر ہو جائے گا۔ اتنی لمبی آپ تمہید باندھیں گے اور آخر میں چوہے کی دم جتنی بات کریں گے۔ دیکھیے، ہماری اتنی اہم بات کو چوہے کی دم بنا دیا۔ آپ بیٹھیے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ گھونگھٹ نکالیے، ہماری طبیعت کو گولی مار کے گھونگھٹ نکالیے۔ اچھا بات تو بتائیں، معاملہ کیا ہے یار؟ جنید میاں، اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہم بتائے دیتے ہیں، تو پھر چہرہ مبارک ہماری طرف کیجیے۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ بلکہ ادھر دیکھنا بھی مت۔ نہیں، میں ان کا موقف بھی پوچھوں گا۔ نہیں تو یہاں پردہ کرا دیجیے۔ تو پھر انہیں کا سن لیجیے۔ اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے؟ آپ ایک شریف آدمی پہ جو تو آپ شریف آدمی ہیں، ان پہ 302 لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اور 302 تو کچھ بھی نہیں، اس میں 118 اور جمع کیجئے، 420 کا پرچہ بھی ہوا ہوا۔ اسی زبان پہ کنٹرول کرو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ارے آواز کو مدھم رکھ، مدھم، یہ اسی کے برابر ہے کاچا بدم۔ دیکھو، کاچا بدم، آواز کو رکھ مدھم۔ ذرا دیکھیے کہ رہائشی علاقے میں شرفاء کی گلی میں مکان بنا لیا، اور اب اس رہائشی مکان کو کمرشلزم کے تحت چلا رہے ہیں۔ کمرشلائزیشن کر رہے ہیں؟ ہاں، سچ کہہ رہے ہیں ہم۔ بھائی دیکھیے، پلاسٹک کی کرسیوں کی ایجنسی لے لیے موصوف، اور گھر کے صحن کے اندر گراؤنڈ فلور پہ درمیان والی دیوار نکال کے اسے گودام بنا لیا ہے۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ گھر میری، جگہ میری۔ اس کو کہیے، ہمارے ساتھ یہ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے۔ بات تو کر رہے ہیں۔ ہاں بس، آپ بیٹھیے، ہمارے ساتھ خود بات نہ کیجیے۔ نہیں چپتا صاحب، وہ کرسیوں کے ساتھ گلی تو رکتی ہے ویسے۔ بابر میاں، ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں، دیکھیے ہر دوسرے گھنٹے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلی کے اندر ایک بڑا سا ٹرک کھڑا ہے، اور آپ کو معلوم ہے، یہ تو اچھی طرح سب جانتے ہیں کہ ٹرک کے ساتھ جو عملہ ہوتا ہے وہ پورے مچھندر ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ایسے لوگ جو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ گلی محلے میں آگے بیٹھ کے سوٹے لگا رہے ہوں اور شرفاء جو ہیں وہ تنگ نہ پڑ رہے ہوں۔ ہر 5 منٹ کے بعد آپ کی بھاوج کو کہنا پڑتا ہے گھونگھٹ نکالیے، گھونگھٹ نکالیے، گھونگھٹ نکالیے۔ آپ کو کمرشلائزیشن پر اعتراض ہے یا وہاں پہ جو ٹرک ڈرائیور جو کنڈکٹر آتا ہے ان کی اوباش طبیعت پر اعتراض ہے؟ ارے بھائی، اعتراض ہی یہ ہے کہ کیوں رہائشی علاقے میں ایک گھر کو کمرشلائزیشن کیا گیا ہے۔ دیکھیے جنید میاں، بات یہ ہے کہ ٹرک تو آئے گا ادھر، وہ جو ساتھ مچھندر ہوتے ہیں وہ بھی آئیں گے۔ بھائی اس کو کوئی مولانا حضرات تو چلاتے نہیں ہیں ٹرک کو۔ اور ٹرک کون سا رائیونڈ سے آتا ہے؟ آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، ادھر والے جو ٹرک ہیں چلاتے تو اسے بھی بھائی ایسے ویسے مچھندر ہی ہیں نا۔ اور وہ تو بٹھاندے ساڑھے تھڑے ہوتے ہیں آپ کے تھڑے پہ؟ ہاں جی۔ اب دیکھیں ذرا بٹ صاحب کیا فرما رہے ہیں، ان کے تھڑے کے اوپر وہ مچھندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور بھابھی بٹھنی بیچاری جو سودا سلف لینے کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے جنہوں نے، وہ بیچاری کیسے نکلے گی؟ ویسے لطیفی صاحب، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی؟ وہ ٹرک اگر آتا ہے تو وہ 10-15 منٹ میں اپنا کام کر کے جو چیز اتارنی ہوتی ہے اتار کے چلا جاتا ہے۔ ارے آپ تو بابر میاں اس کی سائیڈ لیں گے، اس لیے کہ آپ کو 2 کرسیاں پلاسٹک کی گفٹ ہو چکی ہیں۔ نہیں لطیفی صاحب، میں سائڈ نہیں لے رہا۔ ارے خود دیکھا ہم نے آپ کی دکان کے تھڑے کے اوپر وہی اسی کمپنی کی نیلے رنگ کی کرسیاں پڑی نہیں ہوئی پلاسٹک کی۔ اس کی دکان پہ جب ویگنیں آتی ہیں وہ اعتراض نہیں ہے جو سامان دینے کے لیے آتی ہیں؟ کوئی ڈبل روٹی دینے آ رہا ہے، کوئی بسکٹ دینے کے لیے آ رہا ہے، کوئی آٹا اتارنے کے لیے آ رہا ہے۔ چھوٹی گاڑی ہوتی ہے، ہمیں نہ ایسے مشورہ یار محلہ چھوڑ دو بھائی، محلہ چھوڑ دو۔ یہ دیکھیے، ان سے کہیے یار یہ آرام آواز سے اونچی بات نہ کریں نا، اب آرام سے بات آواز اونچی نہ کریں۔ دیکھیے ہماری ان جو پلاسٹی ہو چکی ہے، اللہ رحم کرے۔ ہاں دیکھیے یہ اونچا بولتے ہیں تو وہ سپرنگ ہل بھی مجھے تو ڈر لگتا ہے جب آپ چھینکتے ہیں کہ اسٹنٹ
भाई पक्का डलवाया पक्का है? हाँ, पक्का वैन का है अंदर, पक्का वैन? डलवाया। डॉक्टर वैन सरवर शेड? साहब ने कहा पक्का है। अच्छा, अच्छा। हम पहले डरे थे एक दिन ससुराल जाते हुए, जब रक्षे ने खड्डे में ऐसे जंप मारा ना, तो हमने फौरन फोन मिला लिया डॉक्टर सरवर साहब से। अच्छा, अच्छा। हमने कहा डॉक्टर साहब ये स्प्रिंग ऊपर नीचे तो नहीं होगा? नहीं, पक्का लगाया भाई, जैसे पक्का पंचर नहीं लगाते उसी। अब जुनैद मियां इस हालत में जब बंदा मरीज भी हो चुका हो और बार बार बेगम को कहना पड़े घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए, अच्छा घूंघट निकालिए। जुनैद मियां देखिए, अब आप बार बार जब ट्रक आएंगे और हम कहेंगे कि घूंघट निकालिए, तो हमें तो फिर दर्द भी होगी। लतीफी साहब, आप भाभी को बार बार कहते रहे घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए। जितना आपका दबदबा है, आप ट्रक वालों को कहते कि ट्रक निकालिए, ट्रक निकालिए। अरे गैर इलाके से आए हुए वो लोग, हम कैसे उनके साथ इस तरह का बहस मुबाहिसा कर सकते हैं? तो और क्या? जुनैद मियां को कुछ पता थोड़ी होता है कि कैसे लोग हैं। आप तो बार बार उन्हीं का साथ देंगे, आपको तो 2 कुर्सियां तोहफतन मिल चुकी है। जुनैद साहब, इसी चीज की तो लतीफी साहब को तकलीफ है कि बाबर को 2 कुर्सियां दे दी और मुझे सेट क्यों नहीं दिया? अरे अलग हट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कुर्सियां। आप ऐसे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, उन्होंने मांगी थी आपसे कुर्सी? जी, खुद जनाब तशरीफ लेकर आए थे। कहने लगा कि 4 कुर्सियां और 1 टेबल कितने का सेट होगा? मैंने कहा 8,000 रुपए का। कहने लगा 5,000 रुपए ले लें। मैंने कहा जी 5,000 तो वारे नहीं खाता, 8,000 में थोक भी आपको दे रहा हूं। भाई इस बात पे बहस मुबाहिसा हो गया। नहीं तो हमने मुफ्त तो नहीं थी ना मांगी, हमने तो रेट पूछा था। तो ये तो आपको अकल होनी चाहिए ना कि आप मुफ्त देते। बिल्कुल हमसाया दा इन्ना दे हक है ना। आप न लीजिएगा, इतनी तगड़ी नहीं है कि आप भी उन पे बड़ा जवान हो सके। नहीं मैं नहीं लेंदा कागज वर्गियां कुर्सियां। हाँ, लतीफी साहब, मैंने आपको मना भी किया था कि इनसे कुर्सियां मत मांगिए, कमजरफ लोग। तमीज से बात करो, मैं तुम्हें बता दूं। घूंघट निकाल बे। अगर हमारी चौजा के मुताबिक इस तरह की आवाज निकाली। आप सारे लोग बैठ जाए, आप सारे लोग। ओ बाबर मियां, बैठे आप अपनी निशस्त पे, आप बैठ जाए। आप जरा तशरीफ लाएं। आप बैठे ना, आप इधर आए जरा, आप इधर आए, आप भी जरा कुछ होने इधर वाला तशरीफ लाएं। अल्लाह। नहीं, आप भी जरा करीब तशरीफ लाएं। कुछ होने वाला हटा दे, ये दरमियान में से हटा दे, ये दरमियान में से हटा दे। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, इन्होंने आपकी भावच के साथ ऊंची आवाज में बात की है। ठीक है, जो किया पता चल जाता है। नहीं, वो हमें कमजरफ कहेंगे जब तुम्हें तकलीफ नहीं हुई। देखिए वो नवाब फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, ये इन्होंने गलत किया है। इतना बड़ा खानदान और डर, आप इतने इतने छलावे से रहे हैं, वो देखिए। नहीं, वो असल में मेरी टेंशन बहुत लेते हैं। बैठिए ना आप। हाँ, देखिए देखिए, इनके साथ नहीं ऊंची आवाज में बोले, हमें बेशक जूते मार ले। नहीं नहीं, जरा आराम से बात किया करें। लतीफी साहब के कम से कम हसब नसब का ख्याल किया करें। इतने बड़े रईस नवाब खानदान के चश्मो चराग हैं वो। हाँ जी, नवाब फैमिली है जी। अब भाभी ने तो देखते लगता है नवाब बहते ही जा रहे हैं। देखिए जरा। अरे नवाब है या कच्चा मकान है जो बैठी जा रही है? ऐसे ही है, जब ये जोड़ा शॉपिंग करके आता है तो पीछे तोड़े में सामान और आगे थैले में इन्होंने चाची बिठाई होती है। देख ले, सब लोग मुझे बातें कर रहे हैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे छोड़ दे इस हुद के बच्चे को, इसके मुंह ही न लग। ये इसी तरह है बदतमीज लोग, इनको क्या मालूम कि बड़े लोगों के साथ किस तरह गुफ्तगू होती है। लतीफी मियां, जो उसने फजूल बात की है, आपने मेरा ख्याल नोट नहीं की। हाँ जी। उन्होंने कहा है कि साइकिल पे सामान लेके थे, सामान पीछे कैरियर पे रखा होता है और भाभी थैले में डाली होती है। यानी ये भाभी ना हो गई, बिल्ली हो गई। आपको कहा है हमने कि घूंघट निकालिए। अगर आपने घूंघट निकाला होता तो मालूम पड़ना था कोई कि आप थैले में या कैरियर में है। घूंघट निकालिए। और घूंघट नहीं निकालना तो फिर थैले से मुंह ना निकाल ले, पता भी ना चले। तो और क्या? इस झगड़े को भी साइड पे रखे, लेकिन ये एक बुनियादी असूल है कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल काम करना जो है वो दीगर तमाम मोहल्लेदारों के लिए बाइस ज़हमत होता है। आप ये बात तस्लीम कर लें। वैसे ही मोहल्ले के चौधरी बनते हैं और देखिए हरकतें इनकी देखिए। अगर कोई छोटा मोटा काम करना भी है आपने तो कम से कम फिर पूछ ले एक दूसरे से, इजाजत तो ले ले। ऊपर से आप सीना जोरी करते। नहीं जुनैद साहब, आपकी बात बिल्कुल बजाय है और मैं गोदाम का बंदोबस्त कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे मिल गया मैं ये गोदाम उधर शिफ्ट कर दूंगा। यार देखें, एक तो आप गलत काम करते हैं, यानी एक तो आप चोरी करते हैं, ऊपर से आपका बेटा जो है ये सीनी जोरी करता है। So sweet. सीनी जोरी भी नहीं जी, पसली जोरी करता है। और जुनैद साहब देखिए, ऊपर से सीना जोरी कैसी है कि कहते हैं कि जिस ट्रक के आने की आपको तकलीफ होती है ना गली में,
इसी ट्रक में आपको फेंक लिया जाएगा और आप गायब हो जाएंगे। आओ फिक्र ना करो लतीफी साहब, जिस दिन ऐसा वक्त आया साडी लाश तो नंग के तुहाडे तक पहुंचणगे। और कौन सी लाश ते किन्ने नंगना है? गली की नुक्कड़ पे कुत्ता बैठा हो तो तू बड़े भाई के घर जाके सो जाता है। मैं कुत्ते कोलों नहीं डरदा, 14 टीकियां कोलों डरना। 14 टीकियां को डरना है, 14 पराठे खांदा ते नहीं डरदा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। शहद भी अब एक तरह से सिंथेटिक आना शुरू हो गया है, यानी नकली असली शहद आना शुरू हो गया है। मैं अपना जुमला दोहरा रहा हूं, नकली असली शहद आना शुरू हो गया है। असली लेकिन नकली है 100% वही शहद है जो मक्खी बनाती है, लेकिन मक्खी से नहीं बनाया जाता, इंसान बनाता है। अच्छा भाईजान, दुनिया में जहां भी खाने पीने के शौकीन लोग बैठे होते हैं तो उनका एक महबूब मौजू है, वो पता क्या है? असली शहद की पहचान। बहुत ज्यादा इस पे हर बंदा जो है ना वो अपने इल्मो इरफान के दरिया बहा देता है और बताता है कि नहीं जी, नहीं ये ठीक तरीका नहीं है, असल में ये ठीक तरीका है। कुछ पाओ ठीक इस तरह पता चलता है, इस तरह पता, और नहीं जी नहीं ये पुराना तरीका था, असल तरीका ये है असली शहद की पहचान का। या खाने पीने के शौकीन बैठे हो या बीमार बैठे हो, बिल्कुल सही। वो भी कहते हैं कि यार हॉस्पिटल का कोई वार्ड हो, असली शहद कित्थों मिलेगा? कहने दसिया सीने आस्ते बहुत अच्छा होता। अच्छा भाईजान, आपने एक बार अपने बड़े भाईजान का जिक्र करते हुए, गुल्लू भाई की बात करते हुए कहा था कि देसी कुकड़ी की क्या पहचान होती है? जड़ी फड़ी नहीं जाती। जड़ी फड़ी नहीं जानती। देसी शहद की क्या पहचान होती है? जड़ा मिलता नहीं। गल में होते। अब मैं आज यही बताने लगा हूं कि यहाँ पे लाहौर में एक वाकया पेश आया था किसी बड़े स्टोर पे, तो उसके बाद मैंने इसको डिग आउट करने की कोशिश की है कि यार ये मामला है क्या, देसी ये जो शहद है इसकी पहचान क्या है जी। आप ये सुन के हैरान होंगे कि शहद की कोई पहचान नहीं है। ये जितने भी फार्मूला है ना, जितने भी, आग लगा के देख ले, पानी डाल के देख ले, मोमबत्ती उल्टी कर ले, मोमबत्ती सीधी कर ले, तार बना के देख, तार बना के देख ले, बिजली की तार बना के देख ले, जो मर्जी कर ले, आप ये इस बात को यकीनी नहीं बना सकते कि ये असली शहद है या नकली शहद। और अब बाकायदा जो एक्सपर्ट्स हैं, बल्कि जो फूड अथॉरिटीज़ हैं दुनिया भर में, और हमारे यहाँ की भी जो फूड अथॉरिटी है वो भी ये तस्लीम कर चुकी है कि नकली शहद का पता चलाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इसलिए कि जिन जिन चीज़ों से शहद की नकल पकड़ी जाती थी, नकल बनाने वालों ने उसका कोई ना कोई तोड़ कर लिया हुआ है जिससे वो चीज़ वो नहीं पकड़ी जा सकती। इसलिए नकली शहद जो है वो पकड़ना, वो असली की तरह ही होता है। अब प्रॉब्लम एक और है, वो ये कि नकली शहद कहते किसको है? नकली शहद किसको कहते हैं? 3 तरह के नकली शहद है। नंबर 1 कि जिस शहद का मक्खी से कोई दूर दूर का ताल्लुक ही नहीं है, शीरा लिया, कोई केमिकल लिए और खुद ही घोल के उसको शहद का नाम दे दिया, जी ये शहद है, वो तो बिल्कुल ही नकली है। दूसरे नंबर पर नकली शहद वो होता है जो शहद की मक्खी खुद जाके फलों से इकट्ठा नहीं करती, जमा नहीं करती उनका रस, ठीक है, और उस मक्खी को कोई वो दिया जाता है जिसको शीरा कहते हैं या शुगर, गोल्ड शीरा या मैल होती है, ये जो होते हैं ना जी, शुगर मिलों का राब, उसको शीरा राब कहते हैं, शीरा राब दे दिया जाता है, या उसको शुगर सिरप दे दिया जाता है। प्लेट में थोड़ा सा शुगर सिरप रख दिया जाता है, शहद की मक्खी आती है, वो ले जाती है और वो शहद बनाती है। ये 2 नंबर का नकली शहद है, ये कदरे यानी कदरे नकली। हाँ, एक और है नकली मतलब शहद, ये वाला शहद बेचने वाला कसम उठा सकता है कि खालिस शहद है, क्योंकि बनाया तो वो मक्खी ने, मगर मक्खी ने क्या खा के वो शहद, वो शहद है किस चीज का? फलों के रस का है
या गोड़देशी रेद है। अच्छा, अब आता है तीसरे नंबर का नकली शहद, जो सबसे निचले दर्जे का नकली शहद है। यानी कम नकली है कहना चाहिए। वो ये है कि ये उस चीज का शहद नहीं है जिस चीज का क्लेम किया जा रहा है। छोटी बेरी का, बड़ी बेरी का, शहतूत का, फलां दरख्त का, फलां फूल का, उसका नहीं है, बल्कि किसी और चीज का है या मिक्सचर है और मुख्तलिफ चीजों का है। तो ये तीसरे नंबर का है। ये तो एक आम बात है। असल बात ये है कि दुनिया में इस वक्त शहद की पैदावार और शहद की तलब में उतना ही फर्क है जितना गोगे में और जुल्फी में है। कि शहद की ये तो बड़ा कम फर्क है। हाँ, भाई शहद जो है, अब आपको पाकिस्तान में आप बताएं, आपके मोहल्ले में आप सारे बैठे हुए हैं, किसी के मोहल्ले में कोई शहद कभी अब नजर आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही पोल्यूशन इतना हो गया कि मक्खी मारी गई है, मक्खी मर गई है। शहरों में मक्खी मर गई है। अब गांव में अगर कहीं किसी जगह पे जहां पे पोल्यूशन नहीं है और वहां पे कहीं किसी जगह इत्तफाकन शहद लग गया है, जी जी, तो यार वो बंदा कभी भी आपको फोन करके नहीं कहेगा कि शहद आके ले जाओ लगा है, वो खुद उतार के खाएगा। ये जो आपने बताया ना जी कि शहद की मक्खी मर गई है, आप ये सुन के हैरान होंगे कि एक रफ आइडिया ये है कि पिछले 20 बरसों के दौरान वतन अजीज में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जी जी, इंसानी आबादी में 40-50% इजाफा हुआ है। ठीक है, और शहद की मक्खी की तादाद में 40-50% कमी हुई। अंदाजा करें आप। एक वक्त था, चंद साल पहले की बात है, पाकिस्तान कम से कम $2 करोड़ का बेरी का शहद एक्सपोर्ट करता था, और आज अपनी जो हमारी खपत है वो भी हम पूरी नहीं कर पाते। नहीं, जो ये शहद हमारे मिलता है बचपन वो की 2 बात नंबर है। मक्खियां जो हैं वो बढ़िया, बहुत ज्यादा शहद की मक्खी पैदा होती थी और वो उसके पैदा होने की खुशियां भी मनाई जाती थी। हाँ जी, हाँ जी, किसी ओदे अब्बे ने आके तुहानू इत्थे खुशी मनाती है, किसी ने आके इत्थे खुशी मनाती है। अक्सर ये ईमान से बचपन में अक्सर होता था कि रोज ही सुनी था फलाने को शहद की मक्खी लड़ गई और शहद की मक्खी होता इतना था। तो वो शहद की मक्खियां अपनी पैदाइश में खुशियां मनाती रहती थी। अब ना पैदा होती हैं, ना कभी आप लोगों खुशी ने- मनाई है, ना किसी ने सोच पाई। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कम से कम चले अगर 5-6 दफा नहीं तो 1-2 मरतबा शहद उतरता हुआ जरूर देखा, जरूर देख। आज की जो नई नस्ल है ना, जो 20-25 साल जिनकी उम्र है, उन लोगों ने अपनी जिंदगियों में शहद के छत्ते से शहद उतरता हुआ नहीं देखा। वीडियो बड़ा देखी। मंजर होता है। वीडियो ही देखी ये बाला ने, नेट के ऊपर वीडियो बड़ी पड़ी हुई है। श्रीलंका में शहद उतरते हुए, कोरिया में शहद उतरते हुए, कस्तंतुनिया में शहद उतरते हुए। सर लांदा एक बंदा सी ते पूरा महल्ला कमरा बंद कर रहा क्योंकि वो छत्ता पूरा उड़ के महल्ले च फैल जांदा। जी जी जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। माशाल्लाह खुद जानते हो मक्खी ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਮਿੱਠਾ ਪਰੌਂਠਾ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो शहद जो है ना जी, पूरी दुनिया में जो शहद मशहूर है वो न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड में एक शहद है मनुका, वो बड़ा पॉपुलर है और है भी कदरे काफी अच्छा। अच्छा, उसके बारे में भी तुम ये देखो कि जाली बड़ा बन रहा है। मानूका जो है वो भी जाली बनता है। अच्छा, मानूका के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो एक खानदान की मलकियत थी, जो मानूका बाकायदा वो खुद फूल काश्त करते थे और हजारों एकड़ पे काश्त करते थे। फिर कहीं जाके वो जितनी भी डिमांड होती थी उसका कोई 20-25% हिस्सा पूरा कर पाते थे। वो एक फैमिली थी, फिर 2-3 फैमिलियां पे ये काम चला गया। बाकायदा एक हुनर था। अब आलम ये है कि लोगों को तब यकीन आता है कि जब आप मानूका फैक्ट्री, जहां पे शहद बनता है, उसके अंदर जाके लेके आए, उसके जो बाहर उनका जो शोरूम है वहां से भी ना खरीदें, बल्कि उसके अंदर से जाके खुद लेके आए। दूसरे लफ्जों में यानी आप छत्ता चोरी करके लाएं, फिर यानी असली है। बल्कि भा मनुके ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ। यार इधर से पाकिस्तान में एक बहुत बड़े स्टोर में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बड़ा पॉपुलर स्टोर, उधर से मैंने वो मनुका की डब्बी ले ली। अच्छा, बाखुदा 2-3-4 महीने के बाद मैंने उसको झांका डब्बी में, लुक बन गई हुई थी, काली स्याह हो गई हुई थी। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार देखो कितना नाम है इस स्टोर का,
یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا فراڈ. وہ نیوزی لینڈ والا شاید, جی جی جی, نام اس کا تھا نا, نام ملوکا ہے. اچھا نام اس نے ویسے رکھا تو ہوا. نیوزی لینڈ سے ایک دو دفعہ وہاں سے لیا تو مجھے وہ اچھا لگا. وہ ڈیفینیٹ اچھا ہوگا عزیزی, وہ نیوزی لینڈ میں ظاہر ہے لوگ کم ہیں, مکھیاں زیادہ ادھر. نہیں وہ ان کا باقاعدہ یہ کمپنی ہے جو شہد پیدا کرتی ہے. جیسے پا جنید بتا رہا ہے کہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ پھول شول, یہ وہ جیسے ہالینڈ میں بڑا پھول ہے, پوری دنیا میں ان کا پھول جاتا ہے. تو بچو رس کٹ لو تو کیڑا پھول روس جانا. میں تو 2 دن پھول نہ دیکھوں نا میری بری حالت ہو جاتی ہے. اور پھول اگر دیکھ لے تو پھول کی حالت بری ہو جاتی ہے. صاحب دنیا میں جتنی شہد کی کمی ہے, پھر یہی دعا کر سکتے ہیں کہ مکھی کار جتنی بڑی آنی شروع ہو جائے. نہیں دیکھو, جہاں پر ٹریکٹر جی مکھی ہو آپ پوچھیں کنے لڑا شاید. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل سے نوازا ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی دنیا میں جس چیز کی کمی واقع ہو رہی ہے, اس کا تدارک کرنے کے لیے, وہ کمی پوری کرنے کے لیے انسان بھی اس کے مقابلے پہ کوششیں کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں سنتھیٹک گوشت آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, سنتھیٹک دودھ, ہم سب سے پہلے تھے جعلی دودھ, وہ نہیں, اصلی سنتھیٹک دودھ. اچھا شہد بھی اب ایک طرح سے سنتھیٹک آنا شروع ہو گیا ہے, یعنی نقلی اصلی شہد آنا شروع ہو گیا ہے. میں اپنا جملہ دہرا رہا ہوں, نقلی اصلی شہد آنا شروع ہو گیا ہے. اصلی لیکن نقلی ہے 100% وہی شہد ہے جو مکھی بناتی ہے, لیکن مکھی سے نہیں بنایا جاتا, انسان بناتا ہے. جو عمل مکھی کے جسم کے اندر انجام پاتا ہے وہی وہ سارے کا سارا جو میکینیکل عمل ہے وہ ایک مشین کے اندر دے دیا گیا ہے. یعنی رس اکٹھا کیا جاتا ہے, اس مشین میں فیڈ کیا جاتا ہے, اور اس مشین سے پھر شہد حاصل کیا جاتا ہے. وہ 100% اصلی ہوتا ہے, لیکن مکھی کو مائنس کر دیا گیا ہے. کئی فائدے ہیں اس مشین کا نام مکھی رکھ دیا. مکھی رکھ لو. اور آپ اس بہ کے بزنس مین کہتے ہیں میں تو یار 125 مکھیاں لائی ہیں. تیری فیکٹری چ کنی مکھیاں؟ 25. اچھا اس مشین نے ساری مکھیاں گھر بٹھاتی ہیں ویلیاں. ابھی یہ ایک اسرائیلی کمپنی نے شروع کی ہے جو یومیہ 40 کلو شہد پیدا کرتی ہے. پھر ایک 2 امریکن کمپنیز نے بھی اس کو فالو کیا ہے, وہاں پر بھی یہ سنتھیٹک شہد ہی کہہ سکتے, سنتھیٹک شہد پیدا کرنا شروع کر دیا ہے, جس سے کسی حد تک جو ہے وہ شہد کی کمی جو ہے اس کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے. لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ کئی لوگوں کی ضد ہوگی یا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں جی جو اصلی جو قدرتی شہد ہے اس کو کم از کم قدرتی تو نہیں کہا جا سکتا, آرگینک تو نہیں کہا جا سکتا. حالانکہ پھول وہی, رس وہی, لیکن مکھی اندر سے مائنس کر دی ہے. ہاں اصلی شہد کی تو کیا بات ہے. میں بچپن میں ایک دفعہ کھا بیٹھا اصلی شہد. اچھا میں رات کو سو میری آنکھ ہی نہ بند ہو, میں ایسے بند کروں ایسے پکڑ کے وہ پھر ایسے ہو جائے. اصل میں غلطی سے کھانے کی بجائے یہ آنکھوں میں ڈال دیتا. اچھا یہ آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے اکثر ڈالتے ہیں. اور سچ مچ جو بچپن میں 1-2 دفعہ خالص شاید خود اتار کے, وہ ہمارے دوست تھے پا نظر صاحب, انہوں نے اتار کے دیا سوئیاں پنڈ نندی پور کے پاس. ہوئے 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 ڈول بھر کے پا نظر نے شہد دیا ہے. تو شہد تھا کوئی, واہ واہ واہ. شہد واقعی ایک بہت کمال اور خوبصورت چیز ہے, اور کئی بیماریوں کا علاج, کئی بیماریوں کا اور صحت کی علامت ہے باقاعدہ. یعنی آج بھی پوری دنیا میں جو اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں اگر شہد کی طلب جو ہے وہ 25% ہے تو جو پروڈکشن ہے وہ 75 کلو ہے. 75 کلو 25 کلو. اب باقی کہاں سے آتا ہے؟ وہ یہیں سے بنایا. اچھا ویسے خالص شہد کی ایک نشانی ہے, معاف کرنا, انہوں کھاؤ نہ 2-3 سال رکھی رکھو جے خراب نہ ہوئے تو اصلی. یہ بھی آگے ہے کہ شہد خراب نہیں ہوتا, جتنے سال مرضی رکھو. اب جہاں جہاں سے نقلی شہد پکڑا جا سکتا تھا نا انہوں نے اس کا تدارک کر دیا. کچھ سال بعد تو خراب ہو جاتا جڑا ہوندا ہی نہیں خراب کئی سال بھی. یہ شاید ہے کہ جماعت اسلامی والے دا منڈا ہے. چلو باؤ جی نقلی ہے پاویں مینوں 2 کلو دے دو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب دکھاوا کر رہے ہیں
इसको अंदर कर लें। ढिड बाहर कड्डी यही दिखावे वास्ते। यार वो तो हद है, ये कोई मिसाल दे रहा है, पेट उसका निकला हुआ है बेचारा। तो ये भी निकली हुई है यार, ये निकली हुई है, मैंने खुद नहीं निकाली हुई, निकली हुई है। हद हो गई यार। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है अपनी दौलत के खमार में डूबा हुआ नौदौलतिया, जिसने एक नया शौक पाल लिया है। आइए बात करते हैं जी। वैसे मैं माफी चाहता हूं जुनैद साहब, अगर आप मेरे तारुफ में 7 समाजी कारकुन कह दिया करें तो मेरा ख्याल है कि कोई बुरी बात नहीं है। आइए दुम छला जरूर लगा लेते हैं आप लोग, कोई ना कोई साथ लगा देते हैं। देखें, जब पैसे खर्चते हैं तो उसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। पैसे लगाते हैं, समाजी कारकुन ऐसे नहीं बनता। ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਈ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? आपने कभी नेट पे मेरा पेज देखा है? असल बात यह है कि आप ना ये अगर दुमछला लगाना ही है ना तो आप टिकटॉक स्टार लगा लें साहब। नहीं नहीं भाईजान को देखते हुए काफी लोगों में खिदमत का जज्बा जाग गया है। जुनैद, बात ये है कि ये तो है टाइम को अवेल करना। जी जी अभी हम लोग आ रहे थे ना, तो गाड़ी में पड़ा हुआ था एक फूड का डिब्बा। जी। इतना ये तेज है, वहाँ थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर गाड़ी रुकी है, जल्दी से छलांग लगा के नीचे उतरा और साथ ही एक वो मांगने वाला बेचारा खड़ा था। फौरी तौर पे इसने कहा कि सर जल्दी नीचे उतरे। वो बॉक्स इसने मुझे पकड़ाया, वो फकीर को देते हुए ऐसे इसने तस्वीर बनाई और जंप मार के हम दोबारा गाड़ी में बैठ गए। उस फूड बॉक्स के अंदर क्या था? सिर्फ एक समोसा। और भाईजान ने जैसे ही वो दिया है, इनके पेज पे 21 के लोगों ने आधे घंटे के अंदर अंदर उसको लाइक किया है। थोड़ी सी शर्म आई? अल्लाह के नाम पर दिए हुए एक समोसे के बदले अल्लाह से क्या मांगते हो? 21,000 लाइक्स। तो भाईजान अभी तो शुरू हुआ है, देखिए 21,000 लोगों ने देखे, आगे भी देखेंगे तो वो जज्बा और बढ़ेगा ना। जुनैद साहब, हम अल्लाह माफ करे, हम ये नहीं कहते, हम तो सीधी सीधी बात है, नेकी कर नेट पे डाल। वाह वाह वाह। जी दरिया में भाई इधर मेरी नहीं तस्वीर बना ली भाई, उनकी बनाओ, मेरी ना बनाना भाई। अब मैं नहीं सिर्फ बनाता कभी इसलिए तस्वीर। ये काम करते हैं कि दूसरे लोग भी इससे मुतासिर होके वो भी फिर अपने अपने इलाके के अपनी सराउंडिंग में इस तरह का काम करें। बस यही तुम्हारे पास एक बहाना रह गया और तुम्हारे पास करने को कोई बात नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई बहाना है तुम्हारे पास इस तरह दिखावे का? यार दिखावे के लिए नहीं मैं सब कुछ करता। अब मैं अगर किसी स्कूल के फंक्शन में या किसी मोहल्ले के फंक्शन में या किसी गेम के अंदर किसी खेलों के फंक्शन पे जी अगर मैं लोगों को कुछ डोनेट कर देता हूँ, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, फंड दे देता हूँ, तो वो खुद कहते हैं कि आए आप चीफ गेस्ट आप हैं। अच्छा आप इस तरह कर दें, 15,000 की बजाय आप 25,000 कर दें तो चीफ गेस्ट ही आप हैं। अब देखिए उनको 25,000 मिल गया, उनका फंक्शन हो गया, मेरा क्या गया है यार? उनको 25,000 मिल गया, मुझे शोहरत मिल गई। इसे शोहरत नहीं कहते, इसे शोहरत नहीं कहते, इसे शोहरत नहीं तो कहते। फिर क्या कहते हैं भाई? ये अभी मेरे जहन में नहीं आया कि क्या कहते। देखा तुम लोगों के पास खुद अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए अल्फाज तक नहीं है। जुनैद साहब, खुदा के वास्ते बात समझा करें। मसला ये है कि अगर आपने पैसे लगाए हैं, किसी का भला हो गया है, तो क्या हो गया अगर एक आध तस्वीर बना के मिट्ठू लगा दे, अगर किसी अखबार वाले को दे दे। अफजल जो है उसे वो फूड वाली जो है वो तकसीम करते हुए सामान वो अफजल को भेजी है। मैंने फौरन व्हाट्सएप कर दी थी। और तो और भाईजान, ये जो सर का स्टाइल है ना, ये टॉप ट्रेंड बन गया है। हाँ ट्रेंड बन गया, हर ख्वाजा सरार नाचने से पहले ऐसे करता है। भाईजान इनकी भी 1-2 तस्वीरें ले लूं और फिर लगाऊंगा कि राशन लेने के लिए भाईजान के हाथ चंद लोग आए। भाई उनकी बनाओ, हमारी मिल जाती है बाजार से, उनकी बनाओ भाई। अच्छा जनाब, आप जरा ये बताएं कि आपके ये ग्लासेस हैं, ये कितने रुपए में हैं? रुपए में नहीं है पेंडू, डॉलर में पूछो या पाउंड्स में पूछो या यूरो में पूछो। 375 डॉलर के थे। लो फिर कहते हैं दिखावा नहीं करते। तो यार खुदा के लिए आप लोग क्या फजूल सा लफ्ज एक आपको मिल गया हुआ, दिखावा दिखावा दिखावा। जी ये चेन अंदर कर लें, ये दिखावा नहीं है। बाहर तेन वड्डन रही इसको दिखावे से गर्ज नहीं है, इसको ज्यादा गतावे से गर्ज है। ये साथ जो आपने फोटोग्राफर रखा हुआ है, क्या ये दिखावा नहीं यानी है? ऐसी फजूल फजूल सोच है इन लोगों की। जुनैद,
آپ یہ دیکھو کہ 4-5 تولے کی چین ہے، اس کو اندر گھسا چھوڑوں اندر، یار اس نے کیا خارج کرنی ہے گردن پہ؟ اگر لی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے تو اسے نظر بھی تو آنا چاہیے نا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں، اس کو اندر کر لیں۔ ایٹی ڈبار کڈی یہی دکھاوے آستے یار وہ تو حد ہے، یہ کوئی مثال دے رہا ہے، پیٹ اس کا نکلا ہوا ہے بیچارہ۔ تو یہ بھی نکلی ہوئی ہے یار، یہ نکلی ہوئی ہے، میں نے خود نہیں نکالی ہوئی، نکلی ہوئی ہے۔ حد ہو گئی یار، تم زیادہ سے زیادہ وگ پہ کہہ سکتے ہو کہ وگ دکھاوا ہے اس کا۔ بھائی جان ایک دو ان کی تصویریں لے لوں؟ میری تصویریں کیوں لینی ہے؟ سر تصویر تھوڑی سی مدم کر کے نیٹ پہ لگا دیں گے اور نیچے لکھ دیں گے کہ ملک امیر ہویا کوریا کے سفیر سے باتیں کرتے ہوئے۔ واہ جی واہ، تو ایک تصویر میری بھی بنا لو، نیچے لکھ دینا کہ ایتھوپیا کے سفیر سے بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح کرنا تو پھر مجھے جانے دیں ان کو حکمت کی باتیں سنیں ذرا ان سے۔ یار، خدا کے واسطے آپ لوگ تھوڑا سماجی ورک کو دیکھا کرو، سوشل ورک کو دیکھا کرو۔ میں تو ذرا سا بھی مجھے وقت ملتا ہے میں تو نکل جاتا ہوں فوری طور پہ، کہیں نہ کہیں مہمان خصوصی جا کے بن جاتا ہوں۔ مہمان خصوصی اپنے پاس سے پیسے دے کے مہمان خصوصی بنتے ہیں آپ، کوئی بلاتا نہیں آپ کو۔ ویسے کون بناتا ہے مہمان خصوصی؟ کوئی پرسنالٹی ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی عہدہ ہو تو پھر جا کے اس کو بنانا پڑتا بھائی یہ ہے۔ سب چیزیں پیچھے رہ گئی ہوئی ہیں، اب پیسہ ہے، بس پیسہ لگاؤ کو کیا کہتے ہیں کہ پیسہ پھینک تماشا دے۔ واہ واہ، اور یہ پہلا مہمان خصوصی ہے جو آڈینس سے پہلے جا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور نیچے کیپشن لکھی ہوتی ہے مہمان خصوصی شرکا کے انتظار میں۔ ملک صاحب یہ میں موٹو کی ایک تصویر لے لوں؟ کیا لکھو گے نیچے؟ یہی لکھوں گا کہ ملک صاحب ملنگوں میں لنگر تقسیم کرتے ہوئے۔ اچھا، اس طرح کی چمچوں کو اگر ان لوگوں کی ویڈیو پہ لگانے کے لیے کوئی گانا نہ ملے تو وہ لگا لیتے ہیں، چٹھی نہ کوئی سنتے نہ جانے کون سا دیش۔ جہاں تم چلے گئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ چمچہ نہیں ہے، میرا ملازم ہے، میں پے چمچی کرتا ہے۔ ہوں اسے، پے کرتا ہوں میں اسے۔ حد ہوئی اول 18,000 روپیہ لیتا ہے، ڈیوٹی ایسی نہیں دیتا وہ۔ کارڈ کو کچھ بننے کے لیے، کچھ دکھنے کے لیے آپ کو کچھ لگانا بھی پڑتا ہے۔ تو ملک صاحب نے ڈرون والے کیمرے بھی لے کے دیے ہیں مجھے۔ جنید صاحب، ان فضول چیزوں کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میں تو جتنا ٹائم ہوتا ہے سماجی کاموں میں لگا دیتا ہوں۔ ابھی کل میں گیا ہوا تھا، ہمارے محلے میں ہوا ہے فٹ بال کا ٹورنامنٹ، فیفا والوں نے کروایا ہوا تھا۔ فیفا نے نہیں جی، پاش شفیع نے کروایا ہوا تھا۔ محلے کا ٹورنامنٹ فیفا والوں نے، زبردست۔ 2 گروپ وہاں پہ بنے ہوئے تھے، ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ رونالڈو کو بلانا ہے چاہیے، ایک گروپ کہہ رہا تھا نہیں ملک امیر ہو یا کوئی بلانا ہے۔ اور رونالڈو وہ تو نہیں جڑا نال کھراتا تھا کام بھی کرتا ہے۔ او بھائی، ورلڈ لیول کا وہ پلیئر ہے فٹ بال کا۔ آخر کار سب کو یہ سمجھ آئی کہ بھائی پیسے تو امیر ہو یا صحیح ملنے ہیں۔ اور جنید صاحب کتنے لگے ہیں پیسے؟ صرف 50,000 روپیہ، صرف 50,000۔ 50,000 روپیہ خرچ کر کے تمہیں ملا کیا؟ 2 تصویریں۔ یہی 50,000 روپیہ تم نے حقیقی معنوں میں کسی غریب کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا ہوتا، اس کو روزگار مل جاتا۔ سر وہ غریب ہی تھے، سب نے اتنے اتنے کچھے پہنے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ گورا رنگ کرنے والے کیپسول لے جانا ہوتا ہے۔ اڈا سے کیپسول تو نہیں ملنے، گولی ملنی ہے۔ کوئی کھا لیتے پھر روپ چڑھ جاتی تھی۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے کئی دہائیوں سے بیرون ملک مقیم پاکستانی عبدالغفور جمی۔ حد ہو گئی ہے یارا، کئی دہائیوں سے تو اس طرح تعارف کروایا جیسے میں قائد اعظم کے ساتھ باہر گیا تھا۔ 40 سال تو ہو گئے ہوں گے آپ کو۔ اور میرا بھائی بات یہ ہے کہ جتنا بھی دیر ہوا ہے یہاں کی مٹی نے ہم کو چھوڑ سکتا۔ ایمان سے ادھر کی مٹی کھینچ لاتی ہے، حالانکہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ احتیاط کیا کرو، بٹ کیا کر رہا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی جو خوبی ہے نا جمی کی، یہ جب بھی آتا ہے نا واپسی پہ 5-6 کلو مٹی یہاں سے لے کے جاتا ہے شاپر میں۔
हमारी मिट्टी में खुशबू यार आती है। क्यों है फजूल बात करते हो? तुम्हें मिट्टी से प्यार है ना? ओ यार मिट्टी से प्यार है, 5 किलो मिट्टी उठे मिट्टी ना हलवा कर पकाना यार, या उठे कोई पट्ठे वाले को काट गई है मिट्टी जड़ी इठो खड़ के उठे ब्लैक करने में। नहीं तुम मिट्टी ले जाते कि पेच तो नहीं तिकड़ तो नहीं बनाते उथे? और नहीं गौरी साहब इथों हर बारी 5 किलो मिट्टी लै ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। इतनी फजूल गाल करना, बड़ा तेरा चूहे रंबे का मुंह है। इतना 5 किलो में खोदना बैठ के फिर लेके जाना, हटो भैया यार। तो समझ बात ये है जुनेद मियाँ के सिर्फ ये बताने के लिए इधर आता हूँ, आता जाता तो रहते हो वैसे ही। जी जी अपने मामा के लिए भी आता हूँ ना, अम्मा इधर रहते हो उसकी भी मिलना होता है। जी जी जी। अम्मा उदास हो जानी, हाय। अम्मा कहनी है कि पुत्रा एक बार आके मेरे सीने ना ला के चला जाए, तो मैं आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि माँ जो है ना उसकी दुआएं साथ रहती हैं, जितना टिकट खर्चा होता है उसका पता भी नहीं लगना, दूना करके फिर मिल जाना है। तो बात यह है कि मैं जब आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जब कोई प्रॉब्लम देखता हूँ तो मैं कहता हूँ इधर से होता जाऊँ, वाह। आप लोगों को बताता जाऊँ। आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आपका प्रोग्राम ब्रॉड में भी देखा जाता है, वाह। दूसरे मुल्कों में लोग देखता है। तो मैं कहता हूँ कि लोगों को ये एहसास होता है, उनको पता चलता है, जो गलतियां सामने नहीं आती है, जो हम मुंह पे नहीं बोलता है, अच्छा की शर्म दे नालच चुप कर जाने, नहीं बात करते, तो वो मैं इधर आके इसलिए कर जाता हूँ कि ये टीवी के जरिए उनके सामने पहुंच जाता है। बहुत अच्छा। अभी एक बात ज़हन में आया तो मैंने सोचा कि आपके प्रोग्राम में डिस्कस होना चाहिए। देखो जब इधर लोग आता है, पाकिस्तानी जब बाहर से इधर आता है अपने मुल्क के अंदर आता है या इधर से बाहर जाता है, जुनैद आप हैरान होएगा सुन के, यार बेशुमार लोग जो होते हैं वो सामान उठा के ले आते हैं, वो देख रहे होते हैं कि किस दिन इसने बाहर जाना है, एक आध दिन पहले आते हैं, कोई अपना छोटा सा बैग ले आता है, कोई अपना वैसे कार्टन ले आता है, किसी ने वैसे बैग शॉपर उठाया होता है कि हमारे बेटे को दे दे। कहीं तो अपना छोटा बेटा ही उठा के ले आते, ये साथ ले जाना। क्या क्या फजूल गल पे कर रहे, बेटा बेसन ना बनया होना है जेड़ा लेके जाना है। बात कहने का मतलब ये है कि जब एक आदमी बाहर जा रहा है तो एक सामान का लिमिट होता है, वेट का लिमिट होना है। तो संकी भी पता है यार, सारे बाहर आने जाने हो क्या मेरा मुंह टक नहीं हो, बिल्कुल ठीक है आप। वेट ना लिमिट होना है यार। तो उस लिमिट के ऊपर अगर वेट होता है तो वो उधर रोक लेता है, उसको पैसे कर देने पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो अब तो यार इजी कोरियर कंपनियां खुल गई हुई हैं, आपने अगर बाहर किसी को भेजना है तो भाई आप मुझे आके दे रहे हो, मैं उधर जाके पे करके लेके जाऊंगा, तो आप खुद क्यों नहीं कोरियर के जरिए पे करके बाहर और भेज। यार ज्यादा जुल्म ये करते हैं कि पूछते हैं जिमी पाकिस्तान जा रहे हो यार, मेरा एक छोटा सा पैकेट लेते जाना। अच्छा कहते ले आओ यार, मैं छोटा सा पैकेट है। वो जो छोटा सा पैकेट है जब लाते हैं ना, जब गाड़ी से उतारते हैं तो वो इतना बड़ा हो जाता है। कहते नहीं जी राह च वड्डा हो गया। बात ये है कि कुछ अपने आप भी एहसास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे आते हैं, 80% लोग ऐसा होते हैं, जाहिर है कोई ऐसा बंदा वाकफ का होता है तो आना है ना यार, वैसे तो नहीं आना। जिम्मी भाई मेरे लिए गोरा रंग करने वाले कैप्सूल ले जाना होता। उधर से कैप्सूल तो नहीं मिलने, गोली मिलनी है। कोई खा लेते फिर रूप चढ़ जाती। तो बात कौन सी हो रही है, तुझको भी अपना स्यापा पड़ेगा। अच्छा की गल कर रहे भाई। बात ये करना चाह रहे हैं यार कि जब आप देखते हो कि बंदा एक आया है, ऐसा बंदा जिसको इनकार नहीं हो सकता, या फिर आप अपना सामान ड्रॉप करता है, अपनी चीजें जड़ियां ड्रॉप होंडियां ने, या फिर आप उधर पे करके जाते हो। और वैसे भी जिम्मी यार ये बेवकूफों वाली बात है कि वहां से जिम्मी आ रहा बंदा कह रही यार मेरा सामान लेते जाओ, और ये फरमाइश करो कि आते हुए मेरे लिए ये लेते आओ, फिर तो समझ आती है। यार वो भी गलत बात है ना, हद हो गई है यार, तू चेजा लेना मेरा। देखो आपने सामान भेजना है अपने बेटे को या अपनी बहन को या अपने बहनों को या अपने भाई को, तो यार खुदा के लिए कोरियर के थ्रू भेजो। जी बिल्कुल। अब तो बड़ा इजी है, हर चीज चला जाता है यार, हर चीज चला जाता है। अब देखो ना, एक अभी मैं आया किस लिए हूँ, इतना परेशान हुआ हूँ, मेरा एक मसेर है, खाला ना बेटा, जी जी, मासी ना पुत्र जरा होना उसकी मसेर मसेरी आपने। मसेर मारा यार, मुझे कहता है कि मेरा उधर बेटा रहता है जो, उसके लिए रजाई ले जाओ। देखो उसको मैं कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है, उधर रजाई भी मिलता है, उधर ब्लैंकेट भी मिलता है, कम्बल शम्बल बड़े गर्म, बड़े अच्छे जी, बड़े कोई खुदा ना आए उठे बंदा टिश्यू पेपर उठे लेके नहीं सोना।
हर चीज उधर होती है, सर्दी इधर से ज्यादा है, उधर ज्यादा अच्छी चीजें मिलती और रजाई के अंदर से डंग मार के काटने वाला मच्छर भी मिलता है यहाँ पे। है। उसकी आख्या यारा रजाई उठे मिल जानी है, खुदा ना वास्ता है को भेजना है तो उसको पैसे भेज। अव्वल तो उसके पास कहते हैं उसकी माँ को तसल्ली नहीं होनी, वो कहती है कि मेरे मुंडे ने रजाई में खुद न गंडी है, ये लेके जा जरूर। अब टकला जरा एक काटे चाय अपना टैची ते एक मोड़े ते उठे चाय हो या ओडी रजाई, पता ही नहीं लगना कि मुंडा लंदन जा रहा है कि रायवैंड जा रहा है। यारा तुसा की क्या बतावा, एक दफा जी मारा एक और रिश्तेदार अच्छा जी यार कहने यारा लसूड़े ना अचार पाया तो माड़ी उधर बहन रहनी है उसकी दे देना। और मैं क्या चाचा लसूड़े का क्या करना यार तू छाड़ इस गल की, कहने नहीं लसूड़ा उठे नहीं मिलना। मैं क्या उठे ते तू भी नहीं मिलना, चल तेनू ना बैग च पा लवा। नहीं मन्या यार माड़ी नहीं मन्या, और डब्बा रख लिया मैं लसूड़े ने अचार वाला, उठे जाके बैग खोलिया विच सरों ना तेल लीक हो गया है। यार अंदाजा ला गौरी तो साकी यार तुसी तो खुद जाना है यार, तू क्या करना यार, तुझे तो खुद जाने हो बाहर। टैची खोलिया यार, उसना 75 रुपए ना लसूड़े ना अचार, जिन्हें मेरा 2.5 लाख ना सूट तेलो तेल काट चले। मेरा गरक हर चीज ना हो गया ना, मैं उसकी फोन करके ते कोई बददुआ देन जोगा, ना मैं उसकी दसन जोगा कि तेरे सरों ने तेल ते लसूड़े ने मेरा बेड़ा गरक करी साडी भरजाई आस्ते इथों कांटे बनाए सन, ओदे मोती देख पे ओनु लसूड़े चमड़े होए। यार बेचारे का हर चीज लसूड़ी हो गई। गवेंजी का परफ्यूम पाया जाके 2 दफा शू शू किया, सारे लसूड़े की स्मेल आ रही है। अच्छा ठीक नहीं हुआ, बात कर परफ्यूम बासी यार हुई तुसा है। की क्या दसा, रोटी दे उठे परफ्यूम छिड़क के खा ली है यारा, विच लसूड़े की खुशबू आ रही है। ना दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। क्यों नहीं आज तक ये हो सका कि पाकिस्तान के हर इंसान तक पीने वाला पानी ही पहुंच जाए, बढ़िया ये बात। आज तक क्यों नहीं हो सका। अच्छा जी, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी भी खौफनाक पड़नी शुरू हो गई हुई है कि बर्दाश्त से बाहर है, और सर्दी भी बहुत जगहों पे इंतहाई खौफनाक पड़ रही है कि हर चीज ही मुंजमद हो जाती है। जी। इतनी गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में बेशुमार लोग गर्मी की वजह से मर भी रहे हैं, और खास तौर पे अगर जानदारों का जिक्र करें तो जानवर तो बहुत ज्यादा मर रहे हैं। ऐसी ऐसी गर्मी और बेशुमार जगहों पे जानवरों तक कोई ऐसा साइबान या पानी या इस तरह की कोई चीज पहुंचाना कि उनकी गर्मी की शिद्दत कम हो, तो ये बड़ा मुश्किल है। मैंने एक वाकया पढ़ा, एक खबर पढ़ी कि तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं, इंतहाई मजेदार चीज है, इंतहाई मजेदार। कि एक कीनिया के जंगल के करीब एक पैट्रिक नामी बंदा रहता है, अब तो नेट के ऊपर उसकी वीडियोस वगैरह भी हैं और तस्वीरें भी हैं। वो पैट्रिक साहब जी जाते थे रोजाना काम अपने, अपनी मेहनत मजदूरी को, अपनी ड्यूटी को निकलते थे। हाँ जी। तो वो जंगल से उसका गुजर होता था, कुछ हिस्सा वो देखता हुआ। वो लोग वहां पे ऐसे अक्सर हैं जी जी। जो जंगल में से गुजरते गुजर के हैं जाते या जंगल के करीब से गुजरते हैं। अच्छा। उसने ये देखा कि वहां पे शदीद गर्मी की वजह से बेशुमार जानवर मर रहे हैं। देखो क्या अल्लाह पाक ने सोच इंसान को, किसी के ये रहमत है अल्लाह की कि पॉजिटिव सोच इंसान के जहन में आए। देन में आए, हाँ जी। लो जी, उस बंदे ने क्या किया, उसने अपने पल्ले से एक ट्रक खरीदा पानी वाला, जैसे हम वो पानी का क्या कहते हैं, टैंकर टैंकर। टैंकर। पानी का टैंकर उसने खरीदा अपने पल्ले से, हाँ। और उसने भरवाया उसे, 1000 लीटर पानी उसमें डलवा लिया, और वो जंगल के अंदर ट्रक लेके घुस गया। कुछ दूर जाके उसने एक ऐसा, वो छप्पड़ सा कह लें या झील कह लें या एक तालाब कह लें, वहां देखा जो खुश्क पड़ा हुआ था। अच्छा। उधर उस बंदे ने जाके अपना वो पानी का कंटेनर जो है ना जी, वो उंडेल दिया, बगैर किसी खौफ डर के वो उतरा उधर, और उसने अपना पानी का सारा कंटेनर उस तालाब में बहा दिया। वो ट्रक लेके भी थोड़ा सा वापस आया तो उसने मुड़ के देखा तो जानवर दौड़ते हुए आ।
जानवर उधर पानी पीने के लिए भागे। जब उसने ये मंजर देखा तो उसने अब ये ड्यूटी अपनी बना ली। अरे वाह, अपना काम काज ही उसने छोड़ दिया है, वो रोजाना वहां पे पानी के कंटेनर उड़ेलता है जाके। अरे वाह, और अब उसे वहां पे वाटर किंग के नाम से कहना शुरू हो गए हैं लोग। सब लोगों को भी वहां उस आबादी में पता चल गया है और सारे लोग उसके साथ मिलके ये काम करना शुरू हो गए। और जानवर जो हैं वो इस कदर उससे प्यार कर रहे हैं। देखो, जानवर एक ऐसी अजीब अल्लाह ताला की मखलूक, ये हम जानवर समझते हैं, ये जानवर है। हाँ जी, जानवर को पता चल रहा होता है कि ये मेरा हमदर्द है। हमदर्द। बिल्कुल। जानवर को पता चल रहा होता है कि ये मेरा दुश्मन। यार इस पैट्रिक नामी बंदे को कहो कि कराची का चक्कर भी लगा ले। ये इसीलिए तो मैंने ये खबर की है कि खुदा के वास्ते कुछ इस तरफ को सोचें कि हमारे यहाँ तो इंसानों की कई आबादियां ऐसी हैं जहाँ पे पानी का एक कतरा नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। और हम लोग इधर घरों में एयर कंडीशन लगा के बस रहे हैं, रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं जो खत्म होने वाली है। यही तो आप देखें कि उस पैट्रिक नामी शख्स ने क्या अपनी आबादी को एक रास्ता दिखाया है। मैं हैरान हो गया हूं उसकी वीडियोस और तस्वीरें देख के कि खौफनाक जानवर जो है ना जी, वो उसके करीब भी पानी शानी पीने आ जाते हैं और उसे कोई कुछ नहीं कहते। वाह, आप देखें कि अगर जानवर इतना मशकूर हो रहा है तो आप उन इंसानों के पास पहुंच जाएं जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। ये बागे जनाब में परिंदों के लिए दालें डाल के जाता है, ये रोजाना वहां पे उनकी दालें उठा के लाता है। इसको आज तक किसी जानवर ने, किसी परिंदे ने कुछ भी नहीं कहा। बातें यार, तुम करता है बागे उनसे। जना की बात करते हो, ये कब्रों से दाल इकट्ठी कर लेता है। चींटियों की रोजी खा जाने वाला पाई है ये। तुम परिंदों की दाल खाते हो, परिंदों की दाल खाते हो, तुम भी उठ जाओगे। आप यार वैसे मजाक के अलावा ये देखें कि ये क्या सोच है, बहुत अच्छी। कितनी ये मोहब्बत और रहम वाली सोच है कि वो शख्स ने अपने जेब से ये काम शुरू कर शुरू दिया किया है। हाँ जी, कि भाई जानवर यहाँ पे गर्मी बड़ी शदीद हो गई है, जानवर मर जाएंगे। वो जानवर जो उसे खा भी सकता है, हाँ, वो उस तक भी पानी पहुंचा है। पहुंचा। और यहाँ पे हम लोग जो हैं वो देख रहे हैं और कई हुकूमतों से हम सुनते आ रहे हैं, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है जाहिर है सुन रहे हैं। हाँ जी, सिंध की कई आबादियां ऐसी बहुत हैं, ज्यादा लोग अभी। बलोचिस्तान की कई आबादियां ऐसी हैं जहां से मीलों पैदल चल के खवातीन बेचारी और मर्द पानी भर के लाते हैं थोड़ा सा अपने बच्चों को पिलाने के लिए, अपने लिए। उस जगह जहां पे बेशुमार इंसान अरबों रुपए, करोड़ों रुपए की जिंदगियां बसर कर रहे हैं, आसाइशें हासिल किए हुए, करोड़ों की आसाइशें हैं जिन लोगों के पास, वो ये तक नहीं सोच रहे कि ये हम पढ़ते हैं, हम टेलीविजन में देखते हैं, हाँ, हम खबरों में पढ़ते हैं। सियासतदानों को ये शर्म नहीं आती, उन इलाके के सियासतदानों को, कि ये बहस हम करते हैं, सिर्फ हमने अभी तक किया क्या? हाँ, बातें करते हैं, अमल नहीं करते। क्यों नहीं आज तक ये हो सका कि पाकिस्तान के हर इंसान तक पीने वाला पानी ही पहुंच जाए? बड़ी ये अहम बात। आज तक क्यों नहीं हो सका? बड़ी अहम बात। आप पेट्रोल अगर रो रहे हैं, हाँ। आप हर हुकूमत में आके आप ड्रामे करते हैं। अब ये देखे ना, अब ये जो लोग कहते थे पेट्रोल बड़ा महंगा कर दिया, इसने फलाना बड़ा कर दिया, वो खुद भी वही कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि ये हर हुकूमत है ना, जो वो हुकूमत वही कुछ करती है, अपोजिशन फील्डिंग कर रही होती है। मैं इसे कहता हूँ कि यह फील्डिंग शुरू हो गई है। पहले ये फील्डिंग कर रहे थे नून लीग के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग, जितनी भी अपोजिशन थी। हाँ जी, अब वो उनकी बारी आ गई है पीटीआई की, वो फील्डिंग कर रहे हैं, वो रिवर्स मार रहे हैं, इनको उठा उठा के गेंद इनकी विकेटों पे फेंक रहे हैं। यार कब तक ये चलता रहेगा? कब तक आप ये लोग आप तमाशा लगा के, और ऐसी गायें भैंसे हैं, ऐसे हलवा कद्दू हैं हम लोग कि हम बैठे हुए ऐसे देख रहे हैं। देख, हम कुछ नहीं सोच रहे कि ये ड्रामा हो रहा है सारा। ये मुल्क के अंदर ये लोग जो हैं ये ड्रामा करने आए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक है अपने शहरों को सजाएं, आप बिल्कुल ठीक है अपने स्कूलों कॉलेजों को सजाएं, आप अपने हस्पतालों का ख्याल करें, हाँ, मगर खुदा के वास्ते अगर आप इंसान बन के सोचें, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार और उनके उम्मती बन के सोचें, तो आपका सबसे पहला करने वाला काम जो है वो पीने वाला पानी पानी। है, बिल्कुल जी, वाह। हर चीज आप अपना सारा मुल्क लॉक कर दें, ताला लगा के इसको उस तरफ जाएं। बहुत सबसे पहले ये काम करें
کہ سندھ کے اندر اور کوئٹہ کے اندر جہاں بھی اب بلوچستان کے اندر جہاں بھی پینے کا پانی پینے کا پانی نہیں ہے. خدا کے واسطے وہاں پہ پانی پہنچائیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ کبھی بھی اپنے خوف کو اپنی قسمت کا فیصلہ نہ کرنے دیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.